بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم کی ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کے دوران چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نے صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو عید الفطر کی مبارکباد دی، جبکہ چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نے صدر ریاست کو ان کے حالیہ امریکہ اور برطانیہ کے کامیاب دورے کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر بھی مبارکباد پیش کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن پونچھ کے زیر اہتمام فلسطین میں جاری اسرائیل ظلم و بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سردار عمر نذیر کشمیری کی قیادت میں سپلائی بازار سے ریلی نکالی گئی، جو شہر کا چکر لگانے کے بعد مقبول بٹ شہید چوک میں پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر سینئر ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر کشمیری اور دیگر کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، غزہ کے مسلمانوں پر آگ برسائی جا رہی ہے، جس پر مسلم ممالک کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی لمحہ فکریہ ہے، جبکہ دوسری جانب جہلم ویلی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی میں بھرپور احتجاج کیا گیا اور احتجاجی مظاہروں میں اسرائیلی مصنوعات کو آگ لگائی گئی اور تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس دوران ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی سمیت دیگر چھوٹے بڑے بازاروں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال رہی۔ پٹھیکا میں بھی اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں انجمن تاجران پٹھیکا، سول سوسائٹی، سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی میلاد چوک پٹھیکا سے شروع ہو کر پٹھیکا اڈا بازار میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی تمام مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ آزاد کشمیر کے دیگر شہروں کی طرح تطاپانی، سمانی، باغ اور کوٹلی میں بھی فلسطین پر اسرائیل کی جاری جارحیت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر تطاپانی میں فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جبکہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جامع مسجد تطاپانی گیٹ سے میلاد چوک تطاپانی تک ریلی نکالی گئی، جبکہ سب ڈویژن سمانی میں بھی فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں علماء اکرام اور سیاسی سماجی شخصیات، صحافیوں، تاجران سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ باغ میں مختلف مساجد سے ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ حیدری چوک باغ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور تمام اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ کوٹلی میں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، انجمن تاجران، سیاسی سماجی مذہبی تنظیموں اور پبلک سیکٹر امپلائیز فیڈریشن کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور فلسطین اور غزہ میں بچوں، خواتین اور مظلوم مسلمانوں کی نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، جبکہ جامعہ سلطانیہ مسجد کچہری میں شہدائے غزہ اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ہیلپنگ ہینڈ مظفر آباد کے زیر اہتمام خصوصی بچوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ خصوصی بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے۔ شرکاء کی جانب سے مظفر آباد سینٹر کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ مزید تفصیلات مقدس گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کے ڈائریکٹر پروگرامز امجد محمود امجد نے ہیلپنگ ہینڈ مظفر آباد کے زیر اہتمام خصوصی بچوں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امجد محمود امجد نے کہا کہ خصوصی بچوں کو کسی بھی معاشرے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصی افراد کی خدمت دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ کے پلیٹ فارم سے خصوصی افراد کی خدمت کا مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد
बाद आज़ाद कश्मीर में यतीम बच्चों की कफालत, स्पेशल और माजूर अफराद के इलाज, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए। हेल्पिंग हैंड अपने मिशन को जारी और सारी रखे हुए है। हेल्पिंग हैंड टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो माशरे में उस लेवल पे काम करें जिस तरह आम लोग हैं। और मेरी बच्ची वो वाली बच्ची थी जिसको डॉक्टर्स ने ये कह के घर भेज दिया था कि ये ना कभी चल सकेगी, ना बोल सकेगी और ना ही ये सुन सकेगी। आज मेरी वही बच्ची है जो चल सकती है, बोल सकती है, खेल सकती है, सब हेल्पिंग हैंड की टीम और डॉक्टर्स की वजह से। तो मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आज हम यहाँ इस मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ प्रोग्राम के एक तकरीब थी जिसमें ईद मिलन के हवाले से एहतमाम किया गया था। यहाँ बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया। हमने उनके लिए इनामात और उनके लिए ईदी भी तकसीम की है। आज बच्चे बहुत खुश हैं और अब ईद और फन गाला बना रहे हैं। तो इस मौका के ऊपर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के स्टाफ का, यहाँ जो बेनिफिशरीज हैं उनका, और ख़ास तौर पे डोनर कम्युनिटी का, जिनके तावन से हम आज तक यहाँ पे काम जारी रखे हुए हैं। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक का तमाम डोनर्स का, हेल्पिंग हैंड की मैनेजमेंट का, इन सब को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसार और कुर्बानी और हिम्मत और तौफीक दे। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान के डायरेक्टर प्रोग्राम्स अमजद महमूद अमजद ने कहा कि खुसूसी बच्चों की सलाहियतों को सामने लाने में वालिदैन को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ये बच्चे हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने खुसूसी बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए और मुजफ्फराबाद सेंटर की कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सब डिवीज़न समानी के सरहदी इलाके बागचा बंडाला में मकामी अफराद की जानिब से नायाब जंगली हिरन के बच्चे को पकड़े और इसे ज़बह करने और इस सारे अमल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर महकमा वाइल्ड लाइफ हरकत में आ गया। गेम वॉचर महकमा वाइल्ड लाइफ आमिर रफीक की मुद्दत में हिरन पकड़ने और ज़बह करने वाले बागचा के 3 अफराद साजिद हुसैन, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद मुश्ताक के खिलाफ पुलिस थाना समानी चौकी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। याद रहे कि सरहदी इलाके बंडाला में सीज फायर लाइन के उस पार भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू इलाके के जंगलात में गुज़श्ता दिनों आग लगने के बायस बड़ी तादाद में नायाब जंगली जानवर आज़ाद कश्मीर की आबादी का रुख कर रहे हैं। मज़कूरा अफराद की जानिब से वाइल्ड लाइफ एक्ट की खिलाफ वर्जी करने और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर महकमा वाइल्ड लाइफ के अहलकार इमरान आरिफ शाह, जीशान आजम, शहबाज अहमद मौके पर पहुंच गए और मकामी अफराद से मालूमात हासिल करके गैर कानूनी अमल करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस थाना समानी चौकी में बाकायदा दरख्वास्त दी, जिस पर पुलिस ने FIR का इंदराज करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सोने की कीमतों में तारीख रकम कर दी और मकामी और आलमी सतह पर सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ में 90 रोज की मुअत्तली के ऐलान के बाद सोने की कीमतों को पर लग गए। सराफा मार्केटों के मुताबिक पाकिस्तान में 24 कैराट फी तोला सोना 1800 रुपये से बढ़कर पहली बार 3,40,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1543 रुपये बढ़कर पहली बार 2,92,009 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी औंस सोना $18 बढ़कर पहली बार $3236 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। वाज़ेह रही कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में सोने की कीमत 3,38,800 रुपये जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,90,466 रुपये रिकॉर्ड की गई थी। म्यूनसिपल कमेटी पटीका करप्शन का गढ़ बन गई। गुज़श्ता 1 माह में 30 लाख हड़प किए जा चुके हैं और अकाउंट से निकाली गई रकम का कुछ पता न चल सका। वज़ीर-ए-आज़म म्यूनसिपल कमेटी पटीका में होने वाली खुर्द-बुर्द का नोटिस लें। मेंबर म्यूनसिपल कमेटी पटीका राशिद अब्बासी ने पटीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी पटीका करप्शन का गढ़ बन चुकी है और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटीका सैयद साजिद गिलानी चीफ ऑफिसर अकाउंटेंट के हमरा आवाम के टैक्सेस का पैसा हड़प करने में मसरूफ है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों से करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है। हमने बड़ी मेहनत के बाद टूल टैक्स को कानून के दायरे में लाकर
टेंडर करवाया और 30% रकम जमा करवाई और आज पता चला कि 30 लाख रुपए का गबन किया गया है। मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी राशिद अब्बासी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म म्यूनिसिपल कमेटी पटीका में होने वाली करप्शन का फौरी नोटिस लें, आवाम के टैक्सेस का पैसा आवाम पर लगाया जाए, नहीं तो शदीद एहतजाज करेंगे। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के काउंसलर इतनी बड़ी करप्शन में क्यों खामोश हैं। वजीर बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात म्यूनिसिपल कमेटी पटीका में होने वाली करप्शन का ऑडिट करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। आवाम के पैसों पर ऐसे घपलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे इंतज़ाम जेहलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के तालीमी इदारों में जैतून के पौधों की शजरकारी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नाज़िम ज़राअत मुज़फ़्फ़राबाद आमना रफ़ीक और समेत नायब नाज़िम ज़राअत ज़िला जेहलम वैली, असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंचार्ज महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ, स्कूल स्टाफ और तलबा, ज़मींदारों और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। नाज़िम ज़राअत ने शुरका को फलदार पौधों की शजरकारी बिलखसूस जैतून के बागात की काश्त, इसके मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए किरदार और मुआशी अहमियत पर ब्रीफिंग दी। तलबा और इलाके के ज़मींदारों को शजरकारी और शजर परवरी पर खुसूसी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अमली तौर पर पौधों की तनसीब करवाते हुए तकनीकी सेशन भी किए गए। और नाज़िम ज़राअत आमना रफ़ी का कहना था कि महकमा ज़राअत के ज़ेरे तमाम आज़ाद कश्मीर में जैतून के 5 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं। जैतून की शजरकारी के लिए तालीमी इदारों में तलबा और तालबात और असातिज़ा को तरबियत दी जा रही है। जैतून के फ़रोग से किसानों को करोड़ों रुपए की आमदन होगी। इदारे में महकमा ज़राअत के ताउन से जैतून के 100 पौधों की तनसीब की गई, जिस पर प्रिंसिपल इदारा और स्टाफ ने महकमा ज़राअत का शुक्रिया अदा किया। बाग ग्रेड कॉलोनी को बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले मेजर साद बिन जुबैर शहीद के नाम से मंसूब कर दिया गया। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा सरदार ज़हीन खान ने साद कॉलोनी का बोर्ड नस्ब करके ग्रेड कॉलोनी को मुल्क के नाम पर कुर्बान होने वाले बाग के अजीम सपूत सरदार साद बिन जुबैर शहीद के नाम से मंसूब कर दिया, जिस पर अहले कॉलोनी ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल सरदार आसिफ खान, कॉलोनी के मोअज़्ज़ज़ीन और मेजर साद के वालिद सरदार जुबैर समेत दिगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मुल्क व कौम के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे हीरो हैं। इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा ताकि आने वाली नस्लों को इनके बारे में मालूम हो सके कि इन्हें क्यों कुर्बानी दी। और शुरका ने कहा कि ये हम सब के लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपना खून देकर पाकिस्तान बनाया, और आज हमारी अगली नस्ल पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। हम अपने कौमी हीरोज को हमेशा याद रखेंगे। पटीका से खबर शामिल करेंगे। दूसरी सालाना खत्म नबूवत और दिफाए सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस का भरपूर कामयाब बनाने के लिए सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा मुतहर्रिक। पटीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना मुफ्ती नदीम, मौलाना अजमत हयात, राजा अब्दुल्ला खान, हाफिज सलाहुद्दीन चिश्ती, मौलाना उमर नज़ीर और दीगर ने शिरकत की। और फितना कादियानियत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना वक्त की ज़रूरत बन गया है और दिफाए सहाबा और अहले बैत की इज़्ज़त और नामूस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और उन्होंने कहा कि दूसरी सालाना ताजदार खत्म नबूवत दिफाए सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस कल 13 अप्रैल को मुनक्किद होगी, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बड़े उलमाए कराम और नामवर नातख्वां शिरकत करेंगे। मिडल स्कूल बालसेरी पटीका में मुनक्किदा होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सभी राब्ता कौंसिल के ज़ेर तमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद शिरकत करेंगे। कोटली आस्ताना आलिया प्लेर शरीफ बाबा बदू शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का एक रोज़ा उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स की तकरीबात में मुख्तलिफ आस्थानों के सजादा नशीन, उलमाए कराम, ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। उर्स की मेज़बानी साहबजादा साईं मोहम्मद शफीक सजादा नशीन दरबार आलिया प्लेर शरीफ ने की और सजादा नशीन दरबार आलिया खड़ी शरीफ मियाँ मोहम्मद उमर बख्श, साहबजादा गांगबाजी मियाँ अब्दुल अजीज,
बाजी मियाँ अब्दुल रऊफ खिजरी कादरी, बाजी मियाँ अब्दुल रज़्ज़ाक खिजरी कादरी और दिगर का कहना था कि औलिया कराम की ज़िंदगी के असूलों पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। इनके आस्थानों पर हाज़री और रूहानी मजालिस में शिरकत से कल्बी सुकून मिलता है। आखिर पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और फ़लस्तीन और कश्मीर के शहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।